the page because I don't have NCERT right now, but it's breakdown of glucose. So glucose is broken down. Glucose, which is a 6-carbon compound, is broken down, C6, broken down into C3-carbon compound, which is pyruvate. Pyruvate is broken down into 3 ways, maybe in the presence of oxygen, absence of oxygen, or lack of oxygen. Presence of O2, absence of O2, lack of O2. Presence of O2 occurs in mitochondria. Lack of O2 in muscles. And absence of O2 in yeast. 3 passages say it is broken down. So when it is in the presence of oxygen, ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ equation CO2, water and energy. In the absence of O2, it is ethanol, CO2 and energy, ethanol, CO2 plus energy. Lack of oxygen, it will be lactic acid plus energy. How many of you are clear with this diagram? Please raise your hand. Be quick in raising your hand. Adil, Rajot, Prabjot. Oh, very good, Prabjot. Rohan, Janvi, Yash, Kaya, Shreya, Ankit, Chahat, Rishabh. Very good, Rishabh. Kamal, very good. Very good, everyone. Soumya, I'm waiting, bete. Soumya, Sia. Yes, ma'am, it's clear, ma'am. In my phone, it is not coming the option of safe hand. Okay, no worries, bete. So, I think sabhi ko clear ho gaya breakdown of glucose. Yes. And my teacher told us that yeast can respire aerobically also. Yes. Aerobic is absence of oxygen. Aerobic is absence of. तो ये aerobic process ही है बेटे. Yeast. Aerobic is with oxygen. Anaerobic. Oh, sorry. And aerobic, yes. Aerobic मतलब absence, yes. Yeast, fungi. Yes, ma'am. Fungus जो बेटे generally it shows anaerobic respiration only. जो fungi है, yes, it requires moisture and it works in the presence of air only, but maximum time it produces this ethanol CO2 and it occurs only in the absence of oxygen. I'm saying my teacher told us that yeast can respire aerobically, Haan, but it refers to without oxygen. So when if it respires with oxygen, it will produce CO2, H2 and energy, not ethanol. Yes. But that is what I was telling you. Ki absence of oxygen is the preference one. Matlab they perform this respiration in the absence of oxygen. But they sometimes, they can show, but they prefer to respire only in the absence of oxygen. Okay? Yes. So glucose, pyruvate से क्या आएगा? C3 carbon compound pyruvate, maybe in the presence of oxygen, mitochondria. CO2, water, energy. How many ATPs? 38. 38 ATP. Absence of oxygen, ethanol, CO2 or energy, 2 ATPs. 2. Lack of oxygen, lactic acid energy, and 2 ATPs. So अगर आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो है जो प्रोसेस है जो ये प्रोसेस है वो जो I mean glucose है it be broken down into 3 different pathways और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है that is in this aerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है जिसमें आप maximum energy is produced. Okay, just give me some time. So this was about respiration.
और फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. Mechanism of respiration includes two processes, inspiration and expiration. Yeah, inhalation or inspiration or expiration. Inhalation or exhalation. Inspire, expire, inhalation or exhalation. Inspiration में अगर आपको याद हो तो it is a process in which we take in oxygen, and expiration is a process in which we releases CO2. and अगर आपको याद हो inspiration process में ribs जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं. during this process inspiration में जो हमारा diaphragm, ribs, Ma'am, ribs came outward and forward. Diaphragms got flats. yes, diaphragm जो है becomes flattened. very good. diaphragm flat हो जाता है क्योंकि normally it is in dome shape. प्रभ आप ध्यान से सुनना, ऋषभ ध्यान से सुनना बेटे. normally our this diaphragm is in dome shape. diaphragm एक region होता है which divides our body into two equal halves. मतलब हमारी बॉडी में हाफ्स में दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, अपर एंड लोअर बॉडी हाफ. Yes. तो diaphragm becomes flattened, so it gets straightened up when we inspire. और इंस्पिरेशन के बाद जो हमारी रिब्स हैं they come outward and forward. तो ribs comes outward and forward. And this creates decrease in air pressure. और air pressure always moves from high pressure to low pressure. तो बाहर ज्यादा होती है, अंदर कम. It is forced in. Please write it down, Rishabh and Prab. Write it down in your notebook. Then I'll proceed. Yes. ma'am. Done. ma'am. Vijay, are you done? Yes, ma'am. Okay. फिर इसके बाद इसी के ऑपोजिट होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. डायफ्राम becomes dome shaped, मतलब ये रिलैक्स हो जाते हैं. रिब्स कम आउटवर्ड की ऑपोजिट क्या होगा? Inward. Inward. एंड बैकवर्ड. ओके. एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? Increase. Increase. यस. और एयर प्रेशर अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर जाएगी हवा. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर इज फोर्स्ड इन, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर इज फोर्स्ड आउट. प्लीज राइट इट डाउन. और किसको क्लियर हो चुका है? अगर ये आता है 3 मार्क के क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू राइट दिस आंसर ऑन योर? So this is a 3 mark question. I have tried to write it in the point forms. तो आप लोगों को अगर लिखना है तो respiration में आप लिखोगे during the process of inspiration air is forced in, and during process of expiration air is forced out. उसका पूरा mechanism है. Diaphragm becomes flattened, ribs come outward, forward. This create decrease in air pressure. Air moves
air is forced into the lungs due to the process of diffusion. Ma'am, chest cavity it also is also increased in inhalation of. Yes, yes, chest cavity increases. Yes, you can add this point also. I've made you written है ना, सभी आपने लिखा हुआ है. Yes, It increases. Yes, chest cavity increases, air pressure decreases. Chest cavity increases और इसमें chest cavity decreases. Okay, hi, Shan, welcome to the class. Shan, am I audible? Please speak out, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, I was waiting for you, bache. We are doing this chapter life processes. Shan, can you tell me you're from which school? Ma'am, I am from Gem Public School 3B2. Okay, you're from Gem Public School. अच्छा आपका life processes हो चुका है chapter? Yes, ma'am, हो गया मैम स्कूल में लाइफ Okay, प्रोसेस. okay, okay. तो बच्चे हमारा ये लाइफ प्रोसेसेस में अभी हम जो टॉपिक अब बिल्कुल नया टॉपिक है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. आई एम डूइंग जस्ट रिवीजन. तो ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं या सर्कुलेशन जिसको बोला जाता है. Yes, So ma'am. we're going to do the revision of this topic, and there are many students apart from you who have joined in just now. तो आप लोग 3-4 बच्चे जो हो, I'll repeat everything. ठीक है? So don't worry about it. हाँ, तो अब try to join in time. बच्चे, you're late for the class today. What happened? मैम लिंक नहीं मिल रहा था. Okay, okay, no worries. ठीक है बेटे. तो अब देखो हम ये टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. हमारा खाना जो है वो पचता है पेट में, मुझे चाहिए अपने ब्रेन में, अपने लेग्स में. तो हाउ इट मूव्स फ्रॉम आवर स्टमक या इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड. तो ट्रांसपोर्टेशन अकर्स वाया ब्लड. ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा था. आई एम गोइंग बिट क्विक. आप लोग सभी अपना ध्यान इस पे लगाओगे क्योंकि नोट्स के लिए हम सब बना चुके हैं. प्रभ, ऋषभ एंड शान, बेटे आप लोग नोट्स की टेंशन मत लेना. आई विल आस्क समवन टू शेयर पीडीएफ फाइल्स. आप सिर्फ सुनने वाला काम करोगे. इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग. तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसेल्स. पहले तो आपको ये बताया कि ब्लड इज अ पार्ट विच हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. तो इसमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, दैट इज ब्लड. ब्लड इज ऑलवेज रेड इन कलर. इट इज ऑल्सो नोन एज, अगर किसी को याद हो, आप लोगों ने लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड tissue, connective fluid. tissue. Yes, it is fluid connective tissue. Very good. So it is fluid connective tissue, and it is composed of plasma and blood corpuscles. Plasma के बारे में अगर हम बात करेंगे तो Plasma consists of water with dissolved proteins. It is a Yes. serum plus fibrinogen. Yes, yes, it consists of water and proteins. और प्रोटीन्स में आप लोगों को नाम लिखवाए हुए हैं. एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, these are the proteins. प्लस इसमें सॉल्ट्स होते हैं, प्लस इसमें ग्लूकोज होता है. तो ये प्लाज्मा है. प्लाज्मा मतलब पानी. अगर आपका ब्लड देखा जाए तो अगर मैं आपके ब्लड मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक टेस्ट ट्यूब में रखा, तो आप लोग देखोगे कि ब्लड जो है थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है. आरबीसीज या ब्लड कॉर्पसेल्स नीचे आ जाते हैं और वो येलो कलर फ्लूइड जो है आर पार दिखता है. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. किसी ने ऑब्जर्व किया हो कभी ऐसे कि अगर आप ट्यूब में डालते हो ब्लड, तो ब्लड सेटल डाउन हो जाता है, नीचे आते हैं कॉर्पसेल्स और ऊपर येलोइश फ्लूइड रह जाता है, जिससे आप आर पार देख सकते हो. ट्रांसलूसेंट बोलते हैं. यस, Varjot has seen this. Anyone, any other student? No. Okay, Janvi. Okay, very good. Okay, one more student. Yes, Yash. So प्लाज्मा आपका आ गया पानी और उसमें घुले हुए सॉल्ट्स या शुगर. प्लाज्मा की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था. एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सीरम प्लस फाइब्रिनोजेन. सीरम और फाइब्रिनोजेन.
और आपको याद होगा मैंने बताया था दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन हटा दोगे तो सीरम है। सीरम होता है जो Serum पानी, is plasma without fibrinogen. यस, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन, ये डेफिनेशन आपने लिखी हुई है। या फिर आप इसमें बोल सकते हो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन इज सीरम। और सीरम अगर आपको मैं बताऊं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब हमारे पस पड़ती है दैट इज सीरम। जब हमारे चोट नहीं लगती, अगर आपके पिंपल हुआ है, यू फील देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पस, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। या चोट लगती है तो कई बार खून की बजाय सिर्फ पानी निकलता है, चोट में पानी पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। फिर हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स की। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में है, जो ये ब्लड कॉर्पसेल्स बताए, इट इंक्लूड्स आरबीसीज, जिनका नाम से पता चल रहा है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा ब्लड क्लॉट करता है इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज, they help in fighting against germs. RBCs helps in carrying oxygen. तो ब्लड के अगर मैंने फंक्शन किसी से पूछे तो फंक्शन मैंने तीनों बताए हैं, प्लीज आप सुनोगे। फंक्शन, पहला फंक्शन, as blood has RBCs it carries oxygen, as it has WBCs it helps in killing germs, as it has platelets it helps in clotting of blood. जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ, 3 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया हुआ, प्लीज नोट इट डाउन, देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। इफ यू आर डन जस्ट लेट मी नो। किसी ने अगर बना लिया है तो मुझे बता दो। बाकी सबने लिखे हुए नोट्स, सिर्फ प्रभजोत, शान और ऋषभ अगर आपने नहीं किया कंप्लीट तो लेट मी नो, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am, you can move. ओके ओके। तो अब अगर आपने पढ़ा कि ब्लड में, ब्लड के फंक्शंस भी 3 मैंने आपको बता दिए। अब ब्लड में अगर हम और बात करें तो ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कहते हैं ब्लड का टेम्परेचर, ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है। अगर आप ये नॉर्मली सर्दियों में कभी आप एक्सपीरियंस करना कि जब हम, बहुत ठंड होती है और जब आप यूरिन पास करते हो तो आपको ठंड चढ़ती है, यू फील कूल व्हेन यू आफ्टर यूरिनेशन। रीजन, जो ब्लड में से पानी निकला है, वाटर इनसाइड योर बॉडी हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर टेम्परेचर। अगर आप बॉडी से पानी निकालते हो तो इट कॉजेस कूलिंग। तो ब्लड जो है, और इनफैक्ट अगर आपको ठंड लगती है आपके कानों में, आपके हाथों में, आपके नाक पे, आपके फीट पे, तो व्हाट यू डू इज ट्राई टू रब योर हैंड्स। इफ यू रब योर हैंड्स यू विल फील दैट ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज। यस, ब्लड सर्कुलेशन इन दैट एरिया इंक्रीजेस। कई लोग तो जोर जोर से क्लैपिंग करने शुरू हो जाते हैं, कई एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू हो जाते हैं हाथों पे कि मेरे को इतनी ठंड लग रही है, मेरे को क्लैप करते हैं, so as to increase the blood circulation because blood helps in maintaining your temperature. अब ब्लड ही हमारा खाना या हमारी गैसेस को लेके जाता है, तो ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए। क्वेश्चन आता है, give 3 functions, you give 5 functions of blood, so I have written 3. Transport of O2, transport of CO2, transport of nutrients, maintain pH, clotting of blood, regulate blood temperature, protection from diseases. Yes, तो आई थिंक आपने 7-8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी एक स्टूडेंट शेयर कर देना, नोट्स आप लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। नाउ कमिंग टू 7 points. okay, 7 points, ठीक है बेटे। तो now coming to very important organ which is the pumping organ, heart। कहते हैं हमारे बॉडी में, अब आपका खाना मैंने आपको बताया आपके पेट में था, आपके इंटेस्टाइन में था, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड इन योर हेड रीजन और योर फीट रीजन। तो कौन उसको पंप करेगा, कौन सर्कुलेट करवाएगा? तो इट विल बी योर हार्ट। योर हार्ट इज अ सर्कुलेटिंग ऑर्गन। हार्ट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है और कई बच्चों ने नहीं किया था, या किया था नहीं समझ आया, तो आई एम रिपीटिंग अगेन। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। सिर्फ सुनना है आपने, बीच में नहीं इंटरप्ट करना किसी ने भी। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, अपर 2 ऑरिकल्स, राइट 2 वेंट्रिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स। जो ऑरिकल्स हैं
इस टाइम पे जहां पे मैंने ब्लू बनाया है ये है साइड राइट, दिस इज योर राइट ऑरिकल. जहां मैंने रेड बनाया है दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल and this is right ventricle. So heart is divided into 4 chambers, upper 2 auricles, lower 2 ventricles. बहुत इजी वे में आपको समझाना है तो सिर्फ अपना स्क्रीन पे ध्यान दो. तो जो ब्लड है हमारा अपर बॉडी पार्ट से हार्ट में एंटर करता है, लोअर बॉडी पार्ट से एंटर करता है, और हार्ट खुद जो है मसल्स का बना हुआ है. Who will tell me name of the muscles which are present in heart? 9th में किया आपने. Name the muscles which are present in heart. Cardiac muscles. Very good. Very good. Cardiac muscles. Yes, cardiac Cardiac. muscle. Yes, cardiac muscles are present in heart. और हार्ट के मसल्स, हार्ट मस्कुलर जो है कार्डियक मसल्स का बना होने की वजह से मसल्स को हमेशा ब्लड चाहिए. तो ब्लड सप्लाई इसके पास हमेशा होती है. इसीलिए कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपका दिल आपके बॉडी से बाहर निकाला जाए, इट कैन सर्वाइव फॉर few seconds, not for minutes. It can survive for few seconds on its own because heart has its own blood vessels. तो हार्ट से ये 3 जगह से ब्लड जो है आपकी बॉडी में एंटर करता है. कहाँ कहाँ से एंटर करता है? अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट एंड हार्ट. जो अपर बॉडी पार्ट है उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना केवा. लोअर बॉडी पार्ट को बोला जाता है इंफीरियर वेना केवा. और जो आपके हार्ट में आती है, एंटर करती है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी आर्टरी. 3 जगह से, राइट में हमेशा याद रखना 3 ओपनिंग्स ही होंगी, तो तीनों जगह से हमारा ब्लड जो है एंटर कर गया इसमें हार्ट में. Now your heart is filled with the blood on the right side. From right auricle, it is moving into right ventricle. फिर से 3 ओपनिंग्स आएंगी. 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. फ्लैप होता है जैसे ढक्कन, ओपनिंग फ्लैप. तो these flap like structures are called as valves. और ये 3 है तो इसको नाम दे दिया tricuspid valve. How was your test, Adil? Ma'am, it was good. Okay, Ma'am, it was oral. it was all right. Okay, okay, I'll talk to you in the end. Ma'am, So- oral. Oral. Okay, meaning I'll ask the questions in the end. Okay. Okay, ma'am. तो ट्राइकस्पिड वाल्व जिसमें 3 है, 3 ओपनिंग्स आ गई हार्ट में, और 3 ओपनिंग से वो ट्राइकस्पिड वाल्व से नीचे चला गया ब्लड राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में. और ये गंदा ब्लड है इसीलिए आई एम मेकिंग इट इन ब्लू कलर. तो दिस पल्मोनरी आर्टरी टेक्स द ब्लड टू लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में चला गया. लंग्स से ये प्यूरिफाइड होता है, साफ होता है, and then this purified blood enters into the left side through pulmonary vein. Left auricle is filled with pure blood now. Left auricle will pass the blood into left ventricle through 2 valves which are known as bicuspid valve. And then from left ventricle it moves into aorta. Aorta एक pipe है which is also called as larger artery. This aorta, this is also called as larger artery. This aorta sends bloods to different parts of the body. जिसको नहीं समझ आया वो फिर से सुनेंगे. सबसे पहले मैंने बनाया 4 chambers in the heart, upper 2 auricles, lower 2 ventricles. The blue side represents right side represent red side. जो red lines हैं they representing the right side, left side.
तो ब्लू में इम्प्योर ब्लड है, गंदा खून है, और वो तीनों जगह से आता है, सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava and coronary artery. Coronary artery, superior vena cava, inferior vena cava, ये तीनों ने ब्लड को फिल कर दिया, यहाँ पे गंदा खून लेके आए, और ये गंदा खून जो है नीचे चला गया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, यस, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी से वो कहाँ जाता है, ये देखो, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से वो प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाइड ब्लड देन एंटर्स टू द राइट लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू एंटर किया था, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन से वो नीचे आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकैस्पिड वाल्व, और फिर वो एंटर करता है एओर्टा में, एंड देन इट गोज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सिर्फ लेबलिंग किसको समझ आ चुकी है, रेज योर हैंड। बच्चे जानवी, कमल, ऋषभ, सौम्या, ओके कमल, जानवी, ऋषभ, सौम्या, शान, शान क्या लेबलिंग समझ आई, श्रेया, सिया, यश, क्या लेबलिंग क्लियर है, बी Yes, क्विक, ma'am. Yes, ma'am, it's Yes, Okay. clear. ma'am. ओके ओके। तो हार्ट में जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, इट्स द कॉम्प्लेक्स डायग्राम, तो बट आपने बनाना वही है एनसीईआरटी वाला डायग्राम। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन द ग्राफिकल फॉर्म। तो आपको ये बताया था इसमें कि हार्ट इज 4 चैम्बर, अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स। जो गंदा खून है वो ऑरिकल में राइट साइड में, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, राइट साइड में एंटर करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कॉर्नरी आर्टरी, और ये गंदा खून जाता है नीचे ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर वो जाता है लंग्स में, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाइड ब्लड देन एंटर्स इनटू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में it enters into ventricles, and then from ventricles it goes from aorta to body parts, और बॉडी पार्ट से फिर से वो वापस हार्ट में आ जाता है। एंड यू कैन सी दैट हार्ट इज ब्लड इज एंटरिंग फ्रॉम 2 साइड्स इन द बॉडी, पहले हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, फिर से हार्ट में। As blood is entering twice into the heart, it is called as, yes, Double circulation. double circulation. In your NCERT, the diagram is given like this. इसमें हार्ट ये बना हुआ है छोटा सा, हार्ट के नीचे ही डायग्राम बना हुआ है डबल सर्कुलेशन का, और जिसमें आप ये देखते हो ऐसे बना हुआ है। तो दिस इज द हार्ट, तो हार्ट से गया वो लंग्स में, तो हार्ट टू लंग्स एंड देन टू हार्ट, फिर वो गया हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड देन टू हार्ट। As blood is passing twice through heart, this is known as double circulation. और जब वो हार्ट लंग्स हार्ट होता है, then it is called as pulmonary circulation. And when it goes from heart body parts heart, this is called as systemic. तो 2 तरह की सर्कुलेशन है, पल्मनरी, पल्मनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स, तो जब वो हार्ट लंग्स हार्ट जाता है देन इट इज पल्मनरी, जब वो हार्ट बॉडी पार्ट्स हार्ट में जाता है देन इट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक। How many of you are clear with this diagram as well as this topic? Double circulation. Be quick in raising your hand, which I have to. मैम Yes. क्लियर तो है मैम, पर ये मैम लैपटॉप में लगा रहा हूँ क्लास में, इसमें हैंड रेज करने की ऑप्शन ही नहीं आ रही, पता नहीं Okay, okay, no worries, शान, आप अनम्यूट करके आप मुझे आंसर कर ओके देना। मैम। Okay.
Bajot, you're not audible, bete. Ma'am, will you explain again? Yes, I'll do that, bete. अच्छा, इसमें मैंने आपको बोला कि जो हार्ट है हमारा पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट पंप करता है पहले लंग्स में, लंग्स से जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होता है, फिर से बॉडी पार्ट में वापस आ जाता है। तो हार्ट, लंग्स, हार्ट, हार्ट से जाता है लंग्स में, प्यूरिफाइड ब्लड देन enters into the heart. This circulation where heart, lungs, heart are involved, they are called as pulmonary circulation. और जब वो हार्ट से जाता है बॉडी पार्ट्स में और फिर वापस आता है हार्ट में, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. हार्ट, बॉडी पार्ट्स, हार्ट. एक आएगा हार्ट, लंग्स, हार्ट, दूसरा आता है हार्ट, बॉडी पार्ट्स, हार्ट. तो जब वो लंग से जाता है इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब वो बॉडी पार्ट्स में जाता है इट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड ब्लड passes twice through heart, this is called as double circulation. Clear now? फिर Yes, उसके sir. बाद, हाँ, फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को ब्लड वेसल्स. And there are three types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Arteries carry oxygenated blood, veins deoxygenated, and capillaries are between artery and vein. यस, दोबारा रिपीट करो. When there are three types of blood vessel: arteries, veins, and capillaries. Arteries carry Yes, oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood, capillaries are between artery and vein. very good. So arteries, veins and capillaries. I guess सभी को समझ आ गया होगा. ऑलरेडी किया हुआ है. आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. जो आर्टरीज हैं दे आर वाइड, सुनते जाना आप लोग. दे आर थिक, दे आर इलास्टिक. वाइड समझ रहे हो, इनका ल्यूमेन इज वाइड, whereas vein is thin. थिक का ऑपोजिट हो जाएगा थिन वॉल्ड. दे आर नैरो, स्मॉल है साइज. दे आर इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब दे आर नॉट स्ट्रेचेबल. एंड वेन्स में याद रखना, वी से वेन्स है, वी से वैल्व्स है. वैल्व्स का मतलब होता है पाइप में बीच बीच में यहाँ पे ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड. दोबारा ना आए ब्लड, गंदा खून है ना तो वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए दे हैव वैल्व्स. आर्टरीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे डू नॉट हैव वैल्व्स. और कैपिलरीज बताया आपको, जब आर्टरीज जो ब्रांचेस बनती हैं इन बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, वी हैव कैपिलरीज. तो आर्टरीज जो है डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस which are called as capillaries. इसका अगर हम डायग्राम देखें, आर्टरीज ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, then they form veins. Arteries, veins, capillaries. इसी को और इजी फॉर्म में आर्टरीज, capillaries and veins. Arteries, veins and capillaries. Clear? Yes, ma'am. Okay. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लिम्फ. लिम्फ क्या फॉर्म होता है? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड. Yes. There a difference of artificial, superficial or like easy showing in arteries and veins? इसे रिपीट करो, you're not audible. And is there a difference in being superficial and easily like deep seated in the skin between arteries and veins? But arteries, they are deep seated. They carry pure blood, na? Arteries, they are deep seated. Veins, you can see it superficially. अगर आपको देखते हो आप, blue veins, they are present. You can see them on your hands. But We arteries can are write deep that seated. in a difference. Na? Yes. This point is important. And arteries carry oxygenated, veins carry deoxygenated. Okay. Yes.
तो आर्टरीज और इसमें ये डिफरेंस भी आता है, यस, बट अ मेन पॉइंट इज देयर स्ट्रक्चर or their function. Function is they carry oxygenated blood, they carry deoxygenated blood, or capillaries helps in distribution of blood to different parts, different organs या tissues. अब हम पढ़ रहे थे lymph. Lymph आप लोगों को बताया था, it is a colorless fluid which flows only in one direction from tissues to heart. तो lymph के बारे में अगर हम पढ़ें तो lymph is formed from blood. Blood जब जाता है blood vessels में, उसमें से निकलता हुआ जो फ्लूइड है जो पास हो सकता है, ब्लड में से माइनस कर दोगे आरबीसीज और माइनस कर दोगे प्रोटीन्स, इट इज कॉल्ड एज लिम्फ. तो लिम्फ इज व्हाट? ब्लड माइनस आरबीसीज माइनस प्रोटीन्स. तो आरबीसीज नहीं है तो इसका कलर ही नहीं है, रेड कलर ही नहीं है, इट इज कलरलेस. तो लिम्फ का कलर क्या है? लिम्फ इज कलरलेस Colorless. because it has WBCs. और अगर WBCs है तो it helps in fighting against germs. तो lymph के अगर हम functions बात करें तो सबसे पहला function ही आता है. Protect body by killing germ. It carried digested food and absorbed fat. Yes, it protects the body from germs क्योंकि it has WBCs, white color है तभी, and it carries digested and absorbed fat. It carries digested and absorbed fat. तो इंटेस्टाइन से टिश्यूज तक लेके जाता है ये absorbed fat. और लिम्फ जो है, लिम्फ हमेशा फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स में. लिम्फ वेसल्स में चलेगा. वेसल समझ रहे हो? आर्टरीज या वेन्स की बात हो रही है. Ma'am, और lymph vessel or lymphatic vessel? लिम्फेटिक वेसल भी बोल सकते हो. यस, लिम्फेटिक वेसल्स भी बोलते हैं, राइट, बट इट इज लिम्फ वेसल. इन शॉर्ट टर्म इट इज लिम्फ वेसल और इट कैन बी लिम्फेटिक वेसल. और लिम्फ वेसल्स जब वो ब्रांच करती हैं, दे फॉर्म लिम्फ कैपिलरीज, पतली हो जाती हैं. लिम्फ कैपिलरीज, then all the lymph capillaries they join into a common organ, common part which is known as lymph node. तो lymph vessel है, ये बना हुआ lymph vessel, lymph capillaries and lymph nodes. तो तीन पार्ट जो है मिलके बना रहे हैं lymphatic system. क्वेश्चन आता है what is lymphatic system? It is a system consisting of, yes, lymph is also called as tissue fluid. Very good. Yes, Shan. Because it is carrying the material to tissues, so that is why it is called as tissue fluid, or it is called as middleman also. तो lymph वो है, अगर lymphatic system पूछा जाए तो lymphatic system consists of lymph It vessels. is a system consists of lymph vessels, lymph glands, and lymph which flows from tissue to circular system. It consists of this lymph vessels, capillaries, and lymph nodes. Okay. तो क्या सबको clear है lymph part? Yes. Say yes or no. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. फिर इसके बाद था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ये मैंने कल भी करवाया था क्योंकि आदिल को ये Yes, टॉपिक ma'am. समझना. हाँ, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट्स में दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है. एक तो है वाटर कंडक्ट कर रहा है, जाइलम वाटर के साथ And घुलते ma'am, हुए क्या. food conducting known as phloem. हाँ, वाटर एंड मिनरल्स कौन कंडक्ट कर रहा है? Xylem. और फ्लोएम क्या कंडक्ट कर रहा है? फूड. This conduction of food through phloem is also called as translocation. इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं. What is translocation? Transfer of food through phloem. जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? वाया ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपिरेशन इज अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. तो अगर आपको याद हो, श्रेया, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? पहले भी आपने दिए थे आंसर, ट्रांसपिरेशन एंड
gases. Yes, which gases? CO2 and O2. Yes, exchange of gases CO2 and O2. So what is the function of stomatus? Transpiration and exchange of gases. Transpiration से water transfer होता है, loss होता है water in the form of vapor from the surface of leaf. तो It पानी is भी also transfer known होगा. as necessary evil. Yes, necessary evil. Who will tell me the answer for this one? Necessary evil क्यों बोला गया? Ma'am, because most of the Ma'am, may I water is tell? waste. The And but wastage of water. Ma'am, may I yes, tell? ma'am. Yes. Who is this? Who asked me Chahat. this? Yes, Chahat. Okay, please try to follow the rules. Don't Hmm. unmute yourself until and unless asked. Okay, yes, Chahat. Ma'am, tea is necessary evil because it releases CO2. Sorry, it releases water and there is a wastage of water if it releases excess of water. And Mostly. But why it is Yes, ma'am. necessary? Why it is necessary? बच्चे बोला गया necessary evil. Yes, ma'am. So why it is necessary? Ma'am, it is necessary because it helps in exchange of gases, but it's an evil because there is a lot of wastage of water. Bachche, you sure that during transpiration there is exchange of gases occurring? There is exchange of gases also. Yes. And may Who is this? I, Harika? हाँ बोलो Harika. And it's necessary because if there is no loss of water, no new water through the xylem will not come. Okay. Yes. Any other? Yes. Well tried. Any other? Ma'am, to cool the temperature. undesirable. No. Absorption of Necessary. salt. No. Yes. Yes. A bit of it. Yes. बच्चे necessary तो हुआ वो जरूरी क्यों है बोला क्या? Keh rahe transpiration is necessary because it helps in uptake of water from the soil. It helps in uptake of ions या salt from the soil. Transpiration होगा तो पानी ऊपर जाएगा plant के अंदर. अब आप ये देखते हो you give water to the roots. आप पौधे में पानी डालते हो तो roots में डालते हो but that water is required in the leaves. यूक्लिप्टस देखे सफेदे का पेड़, it is very tall. तो इतनी ऊपर पानी कैसे जाता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. पानी भाप बन के उड़ता है यहाँ से इसके अंदर, सक्शन क्रिएट होता है एंड वाटर इज एब्सॉर्ब. तो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी सो एज टू अपटेक वाटर, सो एज टू कीप द वाटर इन फ्लो. और वाटर के साथ घुले हुए क्या जाते हैं? मिनरल्स. तो वाटर एंड मिनरल्स दे आर एब्सॉर्ब बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. So that is why it is necessary. And evil is Why क्या the बोला? name is evil? Evil because large amount of water is wasted in this process. During this process, Ma'am, why is it necessary? I got disconnect. okay, necessary because it helps in absorption of water. बच्चे मैंने अभी बताया कि you give water only to the roots. अब बहुत बड़े बड़े trees हैं like eucalyptus है, popular है, they are very tall trees, and if you are giving water to the roots and that water is required in the leaves, so there is only process which can take water from the roots to the leaves, that is transpiration. So it helps in uptake of water. And पानी के साथ घुले हुए क्या जाते हैं? Salts या minerals. So water and minerals, they are absorbed because of the process of transpiration. And yes, Rohan said कि it helps in maintaining the temperature. So they are necessary because they keep the temperature cool. They maintain the temperature of the plants. बाहर इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, परसों इतनी धूप थी. कौन निकला था परसों? किसने देखा कि बहुत गर्मी थी? यस यश वर्जोत. तो अगर आप इतनी धूप में आप निकलते हो तो आप देखते हो कि इतनी धूप में आप नहीं खड़े हो सकते, बट प्लांट्स के, हाँ, आपकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको खड़ा होना मुश्किल होता है, बट प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. पानी लॉस होता है, इवेपोरेशन होती है, एंड इवेपोरेशन कॉजेस जागो बच्चों. Coldness. Cooling. Yes, cooling. Cooling. Yes. Cooling. Yes, evaporation causes cooling. तो टेम्परेचर कूल हो गया. और मैंने बताया था बाहर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है, डेजर्ट में अगर बात कर रहे हो तो टेम्परेचर जो है 15 डिग्री नीचे आ जाता है, 35 विच इज ऑप्टिमम. ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी.
तो ट्रांसपिरेशन की वजह से खाना चला गया। अभी कल मुझसे पूछा था आदिल ने कि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में जहाँ खाना बनता है मेजर पार्ट इज लीव, पता है सभी को। लीव जो खाना बनाते हैं कौन सा प्रोसेस होता है? photosynthesis. यस, फोटोसिंथेसिस। तो सिया इसमें खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस से। काया, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. ओके, तो खाना जो बनता है फोटोसिंथेसिस से, एंड खाना जो बना है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जहां बनता है उसको बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स इज लीफ। जहां चाहिए उसको बोलते हैं रूट, विच इज सिंक। सिंक हमेशा खाली होगा। तो फूड ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज, एनीवन? Diffusion. डिफ्यूजन। Diffusion. हाँ, खाना नीचे भी जाता है फ्लोएम से, खाना ऊपर भी जाता है फ्लोएम से। ऊपर भी तो चाहिए, ऊपर लीव्स को चाहिए, ऊपर स्टेम को चाहिए। तो देयर इज मूवमेंट ऑफ फूड ऑन बोथ द साइड्स, अपर एज वेल एज लोअर साइड। Xylem also. नहीं 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 बेटे, अभी तो फ्लोएम, फूड कौन कंडक्ट करेगा फ्लोएम? अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो, इट इज थ्रू फ्लोएम ओनली। ग्रीन लीफ में खाना बना, खाना उन्होंने ट्रांसफर किया अपर साइड एंड एज वेल एज लोअर साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज सोर्स में लोडिंग हो चुकी है, खाना भरा हुआ है, और जहां जरूरत होती है उसको बोलते हैं अनलोडिंग। समझ रहे हो, सामान लोड किया है वहां पे और यहाँ पे अनलोडिंग कर दी। समझ आ रहा होगा? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ऋषभ, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। ऋषभ, ओके। हाँ बच्चे, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड। तो ऋषभ, खाना बनता है यहाँ पे फ्लोएम में, लीफ में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना लोड हो गया, कहते हैं ना सामान लोड हो गया। तो सोर्स जहाँ खाना बना है वहां लोडिंग होती है, और जहाँ खाली है वो होता है सिंक। रूट इज अ सिंक, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम इज सिंक। तो जहां बनता है सोर्स, जहां चाहिए वो सिंक, जहां हो रहा है खाना बन रहा है लोडिंग, जहां रिक्वायर्ड है अनलोडिंग, और जहां से वो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं, फ्लोएम से ट्रांसफर होगा बाय प्रोसेस डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की बात अगर हम करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक। Process of loading and unloading from source to sink via phloem is known as translocation. Who will tell me this answer? Translocation क्या मतलब, आपको समझ आया? Ma'am, I will. Yes, yes. Yes, Transport yes. of food from leaves to another part of plants by phloem is known as translocation. बेटे नहीं, जो मैंने आपको बताया है। Loading and unloading of food from source to sink through phloem. Harika, repeat. Loading and unloading of food from source to the sink through phloem. Very good, very good. Loading and unloading from source to sink via phloem is called as translocation. Excuse me now. हाँ जी। Ma'am, if a question about transportation comes for 250 marks, so we have to draw this. Yes, you have to draw this diagram, and you have to write it in points also, the process of this translocation. And this process of translocation is also known as ascent of sap. Ascent of sap. Sap होता है खाना, जो food है that is dissolved in water. So ascent of sap, generally this term is used for xylem, where water mixed with minerals move upward from the roots to the upper parts of the stem. So translocation, ascent of sap, ये है आपका transportation part of the plants.
And this translocation process, ये जो diffusion है, खाना इधर से उधर जा रहा है, it requires energy. अब ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग करते हो, you need fuel ट्रक को चलाने के लिए. तो सेम ATP, energy is required in the form of ATP जब फ्लोएम से ट्रांसलोकेट होता है खाना. Ma'am, can you explain translocation again? Translocation is movement of food from source to sink. It's a process of loading from source to sink via phloem. Ma'am, so it loads food material, something like that. Food material in the form of glucose या starch. Okay. ठीक है, खाना बनता है and it is transported with the help of by utilization of energy in the form of ATP. Okay. Okay, so I guess transportation is clear with everyone. Transportation. Yes, Ajanya ma'am. for- Yes. So shall I proceed with the next part? Excretion. Yes, Prabjot. Rishabh. ma'am. Okay, Rishabh. Rishabh Thapar. Bete. Yes, Okay. ma'am. Okay, good. Yes, Shan. Yes, ma'am. Okay, that's nice. Yes, Shreya, any question, bete? Shreya, No, Sia- ma'am. Okay, Sia, Janvi, Harika, anyone, any question, Bhavit? Clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. कमल आज फिर भाग गया क्लास से, तो कमल के नेक्स्ट मुझे याद दिलाना प्लीज, नेक्स्ट क्लास में I'll ask him. तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन. Excretion is removal of waste from the body. जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, वेस्ट में हमारे एक्सेस वाटर है, पानी ज्यादा पी लेते हो वो वेस्ट है, नमक ज्यादा निकलता है बॉडी में खा लिया वो वेस्ट है, चीनी ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा चीनी, मिठाई ज्यादा खा लिया दैट इज वेस्ट. जो बॉडी में नहीं चाहिए दैट इज वेस्ट. द रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. इन केस ऑफ प्लांट्स, पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, फिर हम आएंगे एनिमल्स पे. इन केस ऑफ प्लांट्स, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ओनली कि प्लांट जो है सबसे पहला तो प्रोसेस करते हैं ट्रांसपिरेशन. Excess water is lost in the form of by the process of plants get rid of excess water by the process of transpiration. Vaporization. Transpiration. Excess gases they are exchanged via yes. Stomata and lenticels. Very good. Yes, stomata they are in the leaves. Stomata and leaves and lenticels in the dead bark. Lenticels in Yes. dead plant. Yes, जिसको नहीं पता वो lenticel ध्यान से सुनना. प्रभ ध्यान से सुनो बेटे. ईशान कि lenticels क्या होते हैं? They are the huge gaps present in the bark of the stem. जो bark होती है stem की, that is dead part. They have huge gaps in between. These huge spaces are called as lenticels. They help in exchange of gases like stomata. तो stem में lenticels है, leaves में stomata है. Okay, ma'am. Okay? तो excretion हुआ plants में, एक तो transpiration से, फिर उसके बाद आपको बताया stomata या lenticels से. They also excrete rubber, gums, resin. मैंने आपको बताया था प्लांट को जब कई बार आप पत्ते को या लीफ को अप्रूव करते हो या स्टेम को करते हो तो आप देखते हो कि उसमें से मिल्की सिक्रीशन ooze आउट होता है, दैट इज एन एक्सक्रीशन. तो ये रबर, गम, रेजिन, these are all the parts of the excretion. So plants में they do the excretion via these processes. Yes, excretion in plants. These are all the steps for excretion in plants. The main product of plant of main product जो waste product in plants, it is CO2, water and oxygen. Plant को oxygen चाहिए? No. वो तो बाहर फेंकता है हमारे लिए. तो plant के लिए excretory product क्या oxygen है कि CO2 है? Yes. Oxygen. 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 तो oxygen. Ma'am, Yes. how we make oxygen, ma'am? कौन प्लांट्स कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बेटे.
Okay. Varjot, tell me, what were the three events which occur during light reaction? Batao answer. 3 event. हाँ, Ma'am, absorption of light very good. Absorption of light. with change chemical Absorption of light. कौन absorb करता है light? By? chlorophyll, ma'am. Yes. Next point. Be quick. Conversion of Conversion of chemical uh, chemical to chemical or conversion of light conversion of light. into chemical. Yes. आगे बोलो. And breakdown of Ma'am, breakdown splitting. of glucose. no splitting of. and- अरे splitting of H2O. Sorry, splitting out. Last point. Reduction of CO2 into CO2 into oxygen. carbohydrates. तो मैम कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑक्सीजन होते हैं. नहीं बेटे नहीं. अब मैंने आपको ये क्यों बोला वर्जोत, क्योंकि आपका क्वेश्चन था मैम ये ऑक्सीजन कहाँ से आई पौधे से. तो ये पॉइंट्स मैंने आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आई हैव आस्क्ड यू टू लर्न दिस पॉइंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न दिस पॉइंट्स? यस. लर्न तो करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने आपको समझा ही दिए थे. समझ आ गए थे. हाँ, कहते हैं पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं? ओके ओके प्रभ, यश, श्रेया, वेरी गुड. तो सबसे पहला होता है लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को. फिर उसके बाद वो लाइट जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी, और पानी टूट जाता है H2 और O2. पानी के टूटने से निकलती है O2, और लास्ट में CO2 जो बचा हुआ होता है, जो प्लांट्स यूज करते हैं CO2, वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर. So these are the three events which occur during light reaction in case of plants. Clear now? तो आपने मुझसे पूछा O2 कहाँ से आई, तो O2 is formed by splitting of water. Clear everyone? Yes. How the split में water? मुझे ब्रेकिंग ये प्रोसेस होता है, ये you will study in +1 class if you take a biology. तो उसमें लाइट रिएक्शन में photophosphorylation process बोलते हैं, where this water splits up या breaks up into H2 and O2, और हाइड्रोजन आयंस यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ओके ओके. सो अब मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में से ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ट्रांसपिरेशन से वाटर, एक्सेस वाटर रिमूव हुआ, जो गैसेस थी वो एक्सचेंज हुई वाया स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम. एक्सेस वेस्ट था, they are released in the form of rubber, gums, raisins, even Ma'am, like oils. clove oil. Yes, oils also, yes. Clove oil, eucalyptus oils. This is how plants show the process of. Lenticels are present in the bark or stem, both. Actually, this part is stem. This part is stem. Stem के ऊपर outermost covering होती है bark. Dead part of stem is bark. तो bark में present होता है. Okay? Clear everyone? तो bark में ये part present होता है, bark of stem, lenticels. बच्चे अभी I'll not start with this kidney part, nephron or kidney. I'll just give you an idea about excretory system. Nephron का फिर से हम next class में करेंगे, and I'll start with एक chapter हमारा हो चुका है chemistry का first, bio का first. I'll start with chapter light. How many of you are done with light chapter in your schools? Raise your hand. Ma'am, when we will start acid, bases and salts? Which I'll tell you. Actually, I wanted to start with physics chapter first, because अगर अभी हमने start कर दिया chemistry के 2 हो जाएंगे, then we'll not be able to complete all the 3 subjects ना. So let me start with physics part. किस स्कूल में electricity chapter start हुआ? Yes. Ma'am, in stepping stones.
Okay, ठीक है. चलो, I'll see to it. I'll let you know. Okay, Shan. Okay, आपके स्कूल में भी electricity and light chapter. Light. No, ma'am, light नहीं होगी. Okay, only Harika. ठीक है. Okay, Harika. Harika, Chahat, you also said that you are done with the light chapter. Yes. Ma'am, actually, we have done till the numericals of light. Okay. ठीक है बेटे. Ma'am, we also have not done light in our school. हाँ ठीक है बच्चे, I got it. So and what about acid bases and salts? Raise your hand. Second chapter chemistry. Prab, Ma'am, it's Soumya, going Harika. on. Yash. अच्छा ठीक है. ठीक है, we'll go with majority. We'll start with this second chapter then, because second chapter काफी schools में start हो गया. Otherwise electricity and light सिर्फ 2 schools में, एक school में electricity, एक में light है. But this acid bases salts, it is in 2 schools, I Ma'am, guess. I have my science paper in June and the syllabus is light and chemical equations and life processes. Sorry, Okay. chemical reaction. First chapter. When is your exam? Because I guess you all will be having your holidays in the month of June, summer vacations. Ma'am, actually, I have my summer holidays now. My school is starting in June now. On which date? 9 June. Oh, okay. ठीक है. चलो, I'll decide and let you know in the next class. ठीक है? तो हाँ, don't worry बच्चे. Syllabus हमारा जल्दी हो जाएगा. Don't worry about the syllabus. But I'll take it priority wise. इसके स्कूल में एग्जाम्स हैं. I'll take that chapter. So excretory system अगर हमने बात किया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था pair of kidneys. किडनी बनाने का तरीका आपको बताया था कि सी ऐसे बड़ा बनाओ, सी. हाँ, बस ये ऐसे बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा. अदरवाइज किडनी बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है. तो किडनीज दे आर इन पेयर. किडनी से जो पाइप निकलती है, दे आर कॉल्ड एज यूरेटर्स. बहुत सिंपल सा डायग्राम है, सुनोगे लर्न हो जाएगा. किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. ये ब्लैडर होता है जो जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होगा और ओपनिंग से निकलता है बाहर, तो यूरेथ्रा. तो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. किडनी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रीनल. लंग्स के लिए हम कौन सी वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी. तो रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आती है, किडनी में प्यूरिफाई होता है, फिर वो एओर्टा या रीनल वेन जो है वो लेके जाएगी ब्लड. रीनल वेन. The renal artery enters into the kidney. The renal vein takes away dirty blood, impure blood away from the kidney. So renal artery and renal vein. तो अभी हमने जो डायग्राम देखा, this is the excretory system. Excretory system में आपने क्या देखा बच्चों? बाहर 2 kidneys, pair of kidneys, right और left kidney, और kidney के आसपास जो pipes निकली, they are called as ureters. और ureters के साथ साथ this is ureter. Ureters opening into urinary bladder and urinary bladder opening into urethra. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes. So I'm not proceeding further. I hope this topic is clear with everyone. जो आप लोगों ने last